السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، الیکشن کا پیریڈ ہمارے تلنگانہ میں نیکسٹ منتھ کی 30 کو الیکشن ہونے والے ہیں۔ تقریباً کم و بیش تمام پارٹیاں اپنا مینیفیسٹو اور اپنی ذمہ داریاں، اپنا پرفارمنس اور اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ لے کر کے پبلک کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک گھمسان چل رہا ہے اس وقت، کافی وفاداریاں ایک دوسرے کی تبدیل ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھی ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں میں کانگریس کا کارکن ہونے کے ناطے کئی سال سے یہ چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ عین الیکشن کے پیریڈ میں کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف اس کے کمزوریاں پکڑ کے ویڈیو ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کا امیج پبلک میں خراب ہو، اسپیشلی مسلمان کمیونٹی میں اس کا امیج خراب ہو اور ہم کو اس کا فائدہ پہنچے۔ لیکن یہی وہ مسلم سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے مسلمانوں کا، کسی حد تک ان کی نمائندگی چلتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بحیثیت مسلمان اس کی اصلاح کے لیے کبھی کسی علماؤں سے، کبھی کسی عالم سے اس کی اصلاح کے لیے کبھی کام نہیں کیا ہے۔ صرف یہ کلپس 5 سال میں ایک بار ریمائنڈ کی جاتی ہے الیکشن کے موقع پر، جیسے کہ فیروز خان نامپلی کا کانٹیسٹنٹ بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ اس وقت ہم کو چنوتی دے رہا ہے۔ ہمیشہ اس کی جو بھی مورتیوں کے بارے میں یا گنیش کے بارے میں جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں، اس میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر یہ کلپس آپ کو بھی نیکسٹ الیکشن میں نظر آئے گی، اس کے درمیان میں کلپس نظر آتی ہے، نہ اس کی اصلاح کے لیے کسی قسم کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک مسلمان ہے، کمزور مسلمان، تھوڑا دین سے غافل مسلمان، لیکن ایک سچا جذبہ رکھنے والا، کسی حد تک مسلمانوں کے لیے بھی کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی کمزوری بھی یہی ہے، یہ لوگ پکڑ کے اس کو ڈالتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کریں، علماء کو لگائیں، بتائیں کہ جو تو بول رہا ہے وہ غلط ہے، اور تیرے ایمان میں کس قدر گراوٹ آتی ہے، تیرا کس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ بات میں بھی بحیثیت کانگریسی فیروز خان کے لیے کام کرنے والا، نامپلی کانسٹیٹنسی میں رہنے والا، میں فیروز خان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہندو مسلم دونوں کے لیڈر ہو، گنگا جمنی تہذیب کو تم برقرار رکھنا چاہتے ہو تو بالکل جائیے۔ ہندو بھائی اگر بلاتے ہیں گنیش کے موقع پر یا کسی اور موقع پر یا کسی اور ان کے فیسٹیول کے موقع پر بلاتے ہیں تو بحیثیت لیڈر آپ جائیں، لیکن کسی بھی قسم کی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے تمہارا ایمان، تمہارا امیج پبلک میں دو بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا تو دنیائی کمی ہو گئی ہے، آخرت بھی خطرے میں تمہاری ہے۔ ایک اس قسم کے میں یہاں پر وہ ورڈز کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں گنیش کے سلسلے میں یا کسی اور کے سلسلے میں۔ وینکٹیش انا کے گھر کے پاس میں وینکٹیش انا ان کو انوائٹ کرے تو
जाके इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू सही नहीं है, आपके ईमान को फुलफ़िल नहीं करती है, आपके ईमान को नीचे ला लेती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाता है। लिहाजा तुम तायब हो, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से रुजू करो, आपकी तजदीद ईमान करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वरना यहाँ पर तो तुम्हें नुकसान हो रहा है। अपोजिशन को भी चाहिए कि उसकी भी इस्लाह की फ़िक्र करे ताकि क़यामत पे तुम बचें, ताकि यहाँ कामयाब हो रहे हैं क़यामत में। वही जो उलमा को खड़ा करके, वही दो मस्जिद के इमाम को खड़ा करके जिस अंदाज में इन्होंने गणेश की या सलमान खान ऐसा बोला, वो जो भी है ऐसा बोले, वो सब गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है। तजदीद ईमान करना चाहिए, आपको कलमा पढ़ना चाहिए वही दो मौलवी साहबों के सामने। आप इस बात का एतराफ़ पब्लिक के सामने करें कि मुझसे थोड़ी गलती हुई है। अगर आप देखते हैं कि गंगा जमनी तहजीब में कोई ऐसा हिंदू लीडर नहीं है जो मुसलमान के फेस्टिवल में आके नारे तक नहीं बोला या नारा लगाया। गंगा जमनी तहजीब उसको नहीं, आप दोनों को अटेंड कीजिए, दोनों कम्युनिटी में रहिए, दोनों कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उसको वो कर सकते हैं। हम आपके भी फेस्टिवल में बुलाइए उनको, लेकिन ये वो नहीं बोलेंगे क्या कि नारे तकबीरिया जो भी है बोलना नहीं बोलेंगे। क्यों? कि उनका अपना अक़ीदा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारी भलाई इसी में फ़िरोज़ खान कि तुम तजदीद ईमान करो, अपनी इस्लाह करो, पब्लिक के सामने जो आपसे ख़ता हुई है दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर उसकी इस्लाह तुम्हारे लिए लाजिम है, ताकि यहाँ भी बचें, आखिरत भी बचे। और आइंदा ऐसी बातों से तुम इज्तनाब करो, इन बातों को अवॉइड करो, तो तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे वालिदैन के लिए बहुत अच्छी बात है। आपके वालिद मोहतरम जहाँ मस्जिद यहाँ शांति नगर के मस्जिद के पहले सबके मुसल्ली थे, ताकि उनके लिए अच्छा इस साल साबित हो। आप लोग तजदीद ईमान कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए और इन दोनों के दरमियान में रहिए। अब वक्त आ चुका है, तुम्हारी कामयाबी का बनने का वक्त आ चुका है। 20 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत का समरा मिलने वाला है, लेकिन जब तक अल्लाह राज़ी न हो, दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। इसके बरिक्स आपको चाहिए कि दोबारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये नहीं होता, समझ रहे? काम कीजिए, फेस्टिवल अटेंड कीजिए, लेकिन किसी किस्म की ऐसी तकरीर जो फेस्टिवल के फेवर में या उनके भगवान के फेवर में जो भी आपको बोलना, आपको कोई हक़ नहीं है। वहीं से तो मुसलमान नहीं बोला जा सकता, समझा? तो इसके लिए आप अपनी इस्लाह करो। और एक पहलू ये है कि एक और जमात मुसलमानों की दावेदार, अच्छी बुनियाद रखी गई, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा उनके वालिद मोहतरम सालाना मिल्लत का, लेकिन ये आज जो पॉलिसी चल रही है उनके फर्जंदान की तरफ से, इस पर भी एक कलाम है। अवैसी बरदारान भी सुन लें और ये उलमा कराम भी सुन लें कि करप्शन का इस्लाम में इजाज़त नहीं है। औक़ाफ़ की जायदादों के बारे में आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपके ऊपर ये बात का इल्ज़ाम है कि आप औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियों को बेचने में मुलव्वस हैं। किसी हद तक ये बात सही भी है, और मुसलमान सूदखोर नहीं होता, मुसलमान का बैंक नहीं होता, मुसलमान करप्टेड नहीं होता, मुसलमान बोगस रिपोर्टिंग नहीं करवाता। आप तो खाइल हैं। सियासत में सब चीज़ जायज़ है, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, है लोगों, इस सरज़मीन पे तुम्हारा भेजने का मकसद यही ईमान वालों का कि तुम हलाल और तय्यब उसका वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के कदम ब कदम न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, तुम्हारा खुदा दुश्मन है।
اور اوقاف کی پراپرٹی جو ہوتی ہے یہ قوم کی امانت ہے، اللہ کے بعد اس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ سود ہے، کئی قتل کے الزامات ہیں آپ لوگوں کے اوپر، کئی لوگوں کے سودے کے الزامات ہیں آپ کے اوپر۔ زکوٰۃ کہاں پر گئی ہے آپ کی؟ آپ کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے اندر سوچیں، اپنے گریباں میں ڈال کے، اپنے کالر میں اپنے آپ کو سوچیں، گھر میں بیٹھ کے سوچیں، مصلے پہ بیٹھ کے سوچیں، کتنی مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بحیثیت مسلمان بولتے کہ طاقت، قوت، توانائی تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اسلام بھی تو آنا چاہیے آپ کے اندر، آپ صرف سنیں۔ اس بحیثیت مسلمان اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں اور حق ہے آپ، ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے، قوم نے آپ کو، کہ آپ ہمارے نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ کرپٹڈ نمائندہ ہم؟ اوقاف کی جائیداد تو کلام، مساجد گر رہے ہیں اس پہ کوئی کلام نہیں ہے آپ کا، مساجد ڈھائی جا رہی ہیں، پھر ایسی پارٹی کی آپ تائید دے رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنے سال آپ جینے والے ہیں اس دنیا کے اندر، کتنے سال تم دباؤ کے تحت، کرپشن کے تحت، کرپٹڈ کے تحت زندگی گزارو، کتنا پیسہ جمع کرو؟ کیا آپ کو ایک دن خبر میں جانا نہیں؟ کیا آپ کو ایک دن اللہ کے پاس سوال جواب ہونے والے سے جواب دینا نہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس دن قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر ہم سے گواہی دیں گے، تمہارا ہر اعضا ہم سے گواہی دے گا کہ تم نے کیا کرپشن کیا تھا، کیا معاملے داری کی تھی، کیا سودے بازی کی تھی۔ کتنے سال جینے کے لیے آئے؟ دولت تو کسی کے بعد رہنے والی نہیں ہے بابا، یاد رکھ لو، کوئی دولت تو رہنے والی نہیں ہے، سود خوری کو معاف ہونے والی نہیں ہے، کسی کا قتل کر دینا، قتل کرنے والے کو جنت حرام ہے، یہ آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے علماء آپ کے بعد ہیں، مفتی آپ کے گھر، جامع نظامیہ آپ کے انڈر میں ہیں، کبھی آپ پوچھیں دانستہ نادانستہ طریقے سے آپ سے کچھ نہ کچھ ایسے وارداتیں ہوئی، آپ روڈیوں کو باہر نکال رہے ہیں، شریفوں کو اندر ڈال رہے ہیں، ایسے واقعات آپ سے رونما ہوئے، کہیں نہ کہیں رونما ہو رہا ہے آپ کے کہنے کے اندر۔ آپ قوم کا سودا میں ملوث ہیں، اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے، آپ اس انداز کی زندگی کے لیے آپ جھوٹ بولنا اسلام میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے آپ، اتنا قوم کو بیچیں گے ہم؟ آپ بہار میں 50 سیٹ پہ تھے، یہاں پر وہی سادھو ہے آپ کے پاس، کیسے کیا پبلک کیا آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے حیدرآباد؟ سب جہاں آپ کا گراف اس تیزی سے گر گیا ہے، پہلی بات تو 40-50% ہی پولنگ ہے، اس میں بھی آدھے لوگ دوسرے لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ووٹ لے رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اچھے انداز میں، میرے کو یاد ہے، چھوٹا تھا، سالارہ ملت بالکل کانٹیسٹ کر رہے تھے، 98% پولنگ ہو گئی حیدرآباد میں۔ تو قانون یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت، شاید صحیح بھی ہے، 100% پولنگ ہوتی ہے تو ری پولنگ کی جاتی ہے، اس کا رزلٹ نہیں دیا جاتا۔ 2 دن تک رزلٹ رکا رہا، عوام میں بے چینی رہی، کشیدگی پیدا ہو گئی، تو بعد میں بولے نہیں، گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ڈکلیئر کر دیا جائے، سالار ملت کو ایز اے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آپ کا گراف کہاں پر چل گیا ہے؟ آپ کا گراف نیچے کیوں آ رہا ہے؟ سننے کی بات ہے، کیا یہ سود کی برکت ہے، یا کیا یہ اوقاف کی جائیداد کی برکت ہے، یا یہ TRS کی برکت ہے، یہ مساجد گرا دینے کی ان کی تائید کی مقصد ہے؟ یہ 5 بچے انکاؤنٹر میں مرکز کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھیے آپ، آج تک کوئی رپورٹ نہیں ہے اس کی، آج تک 5 بچے شہید کر دیے گئے اس کو رپورٹ، اور ظلم تو ظلم ہے، لڑکن کرو، افسوس تو افسوس ہے، کتنا گناہوں کیا آپ سننا برداشت کریں گے؟ آپ کا حکومت و رات میں اٹھا لیا جاؤں، کب تک اٹھائے گا؟ کب تک فرعون بنی اسرائیل کو اٹھائے گا؟ ایک دن تو دنیا میں غرق ہو، یہی علماء تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں، اور تمہاری تائید یہ علماء کو کل کے دن قیامت رسوا کرنے والی ہے۔
ये वो उलमा आ रहे हैं, आपका लंच खा रहे हैं माशाल्लाह, बिरयानी वगैरह अच्छे अंदाज में आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो भी आके खा रहे हैं कि ये एक आलिम आपको बोला कि बाबा कायद कैसा होना चाहिए, बाबा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाबा औकाफ की जायदाद अल्लाह की अमानत है, उसमें किसी भी किस्म की आप तो दूर की बात है कोई और करा तो उस पर आप खड़े हो जाना चाहिए। बाबा दारुस्सलाम बैंक की इजाज़त, सूद की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। आपको बताए पीने की इजाज़त नहीं है, झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, बोगस वोटिंग जो करते हैं इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। एक आलिम बोला आपको भाई कुल का दाम तो सुने नहीं देखिए, कभी एक आलिम की वजाहत नहीं, आ रहे खा रहे जा रहे तो आपकी वजह से ये भी जहन्नम में जाएंगे। सूरह तकासुर पढ़िए आप, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कमाने की धुन ने जमाने की धुन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया कि तुम इतने मसरूफ़ थे कि तुम यहाँ तक खबरों में जा पहुँचे। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें किसी की मौत आ जाए खर्च करो, भलाई के लिए खर्च करो, अच्छाई के लिए खर्च करो, खाना खिलाने के लिए खर्च करो, शादियों के लिए खर्च करो, गरीबों के लिए खर्च करो, अपनी वोट दे के आज भी करीब उसके लिए खर्च करो। कहाँ पर है अल्लज़ीना ला यातूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून, जो ज़कात नहीं देता वो काफिर है बोला अल्लाह ताला। ज़कात कितनी निकल रही है, आपके हवारी आपके साथ रहने वाले करोड़पति है तो आपका क्या हाल हो सकता है। माशाअल्लाह आपके पास काफ़ी बात है, उसका हिसाब भी होने वाला है। याद रखो बाबा, उसका भी हिसाब होने वाला। सब बाबा आपको बोल रहा हूँ मैं, बुरा मानो या भरा मानो, यह हकीकत है आपकी आखिरत की भलाई के लिए, आपकी दुनिया की भलाई के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके आबरू के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। पैसे वाला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हिसाब किताब देखिए 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, पैसे वाला 500 साल के बाद में जन्नत में, जब तक कि वहीं पर हशर के मैदान में हशर को ना किया। इसका क्या हिसाब है आपके पास में, हिसाब रखिए। तो आपकी प्रॉपर्टी जो हो चुका, अब आपका काम है अब जो हो, ऐसे उलमाओं में अपने बात मत रखो जो आपको हकीकत से आगा ना करे। और उलमाओं को भी चाहिए कि अगर नहीं बोल सकते तो आपकी ताईद दें, उनकी भी फलाह इसी, उनकी भी फलाह इसी में यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीही, और उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही अपनी माँ से भागेगा, व अबीही अपने बाप से भागेगा, व साहिबती अपनी बीवी से भागेगा, व बनी अपने औलाद से भागेगा। कौन किसके काम आने वाला। 12 करोड़ की गाड़ी, बताइए क्या कारोबार क्या बिजनेस है उनका। आपकी पुष्पनाई ने अच्छे अंदाज में ज़मीन कारोबारों में उन्हें कमाया है, इसमें कोई कलाम नहीं है। अगर आप अच्छे अंदाज में 100 करोड़ कमाते तो कोई कलाम नहीं है, इस्लाम इजाज़त। लेकिन आपका भी काम है पैसा आने के बाद में खर्च करना, आपकी जिम्मेदारी है। ज़कात तो फ़र्ज़ है, और सुन्नत तरीक़े से और नवाफिल तरीक़े से आपको कहीं ना कहीं ये उम्मत को देना चाहिए। उम्मत मुस्तहिक़ है इस उम्मत की औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियों को सेव करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कौम ने आपको वोट देकर ताकत को बच बनाया, कोई जब नहीं अल्लाह की तरफ हुक्म हो जाता है ये कौम आपको वोट न दे, उसका शुक्र अदा करिए, इन बातों का जायज़ा लीजिए। और बहुत बड़े बड़े बातें मैं बोलना पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी हमारे पास से मकाम रखते हैं। हम भी बचपन से सालार मिल्लत के लिए काम करे हैं। हम बिल्कुल छोटे थे, मजलिस को ऊपर करने के लिए जब हमारा लोगो तराजू हुआ करता था, 40 साल पहले की बात कर रहा है, डंका बजा दी यही हमारे गोलीगुड़े के अंदर। हम आमने सामने की लड़ाई लड़ने वालों में से वो ये बंदा भी उसमें शामिल था। कमसिन था, उसके बावजूद इंसाफ या इंसाफ की बुनियाद पर उनके सामने खड़ा हो गया। यही इंसाफ। बातिल मजबूर होकर भागने वालों को बोले भाई पहले मुसलमान है जो मजलिस ये है जो यहाँ तक गौलीगुड़े में तक आ करके हमारा वोट को इस्तेमाल करने की हमको खबर दी है, लेके गए हैं, लिखा है कि हमारा वोट दिला, नाम घर से नहीं निकल सकते थे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी जुल्म बहुत की है, लेकिन आज ये मासूम बच्चे फिर रहे हैं, जो जुल्म करे वो तो चले अपने अंजाम को पहुँच गए। क्या आप भी अपने अंजाम को पहुँचना चाहते हैं? आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा मोहतरम सब कांग्रेस से कॉन्टेस्ट करें, कांग्रेस का दूध पिए, बड़े हुए हैं, MLA बने हैं, MP बने हैं, यहाँ तक यहाँ पर आए। कोई दूसरी पार्टी आपको नहीं लाई। आपको जो चीज़ की ज़रूरत थी यही कांग्रेस आपकी रहनुमा थी।
चंद्र श्रीवास्तव आपको याद है या नहीं याद है? चंद्र श्रीवास्तव एक आपके दारुसलाम में एक कैबिन थी, उसके कांग्रेस का उन्हें आदमी था जो आपका एडवाइज़र था सालार मिल्लत का। जब भी बात कांग्रेस से आधी हाई कमान से उस तक आती थी, उसके ज़रिए से सालार मिल्लत की जो भी बात होती उसके ज़रिए से हाई कमान को पहुँचती थी। सब मालूम है बाबा, ऐसा ना समझिए कि हम लोग मर चुके हैं आपके वाले मोहतरम के ज़माने तो जिंदा है भी। आप बच्चे थे दारुसलाम में, हम भी बच्चे थे, ऐसा बैठते थे, आपको स्टेज पे बिठाते थे, आपको बोलने की सलाहियत नहीं थी आपको। क्या आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं, आप उसकी इस्लाह भी कीजिए, अपनी भी इस्लाह कीजिए, ताकि आपकी दुनिया तो बदनाम हो चुकी है, आखिरत खराब न होने पाए। ये उलमाओं को भी चाहिए, ये उलमाओं को भी चाहिए, रोक दो कर बुरा करे कोई, या इस्लाम नहीं जानते, ये अल्लाह उसके रसूल को नहीं जानते, क्या ये रब्बुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैहि को नहीं जानते, ये क्या बुराई को रोकने का हुक्म के माने में जो हदीस आई है, जो कुरान में आया है, जो भी आया है, नहीं जानते? सब जानते हैं, क्यों नहीं बोल रहे आप? ये आपके दुश्मन है, ये आपके रहनुमा नहीं है, ये आपके दुश्मन है। कल के दिन आप इनको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। आप पूछना, आपका काम है, नहीं पूछो तो बताना उनका काम है। बाबा इसकी इस्लाम में खत्ता गुंजाइश नहीं है, बाहर से थे मुसलमान, इसकी गुंजाइश नहीं। पर अपनी इस्लाह कीजिए। बरसान तुम्हें भी मुतनब्बे करता हूँ कि दोबारा ऐसे इल्तिफात मत करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, अच्छा मुसलमान बन के मुसलमानों में रहबर बनने की कोशिश करें। हम तो आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। TRS ये वो गवर्नमेंट है जिसको हम नहीं मान सकते। 2009 तक आप कांग्रेसी थे। सबसे पहले आपके वालिद मोहतरम 67 में चारनार से सिलेक्ट हुई, चारनार कांग्रेस की सीट थी, उसने तुम्हारे वालिद मोहतरम को मार के MLA बनाया। 2009 तक तुम कांग्रेसी थे। आज क्या होगा? MP में जाके बोल रहे कांग्रेस नहीं चाहिए, UP में जाके बोल रहे कांग्रेस नहीं चाहिए, कर्नाटक में जाके बोल रहे कांग्रेस नहीं चाहिए। तो चाहिए कौन आपको? आपको कौन चाहिए दिल्ली में? ये जालिम 370 NRC में निकलने की इजाज़त नहीं है। पूछे KCR को, 5 बच्चे इनकाउंटर में गए, आप पूछे KCR को, 2 मस्जिद तोड़ के एक मस्जिद दिए। सेक्रेटरीट क्या था? सेकुलर सेक्रेटरीट था कांग्रेस के पीरियड में, लेकिन आज RSS का सेक्रेटरीट है। मंदिर भी थी, मसाजिद भी थी, चर्च भी था, लेकिन बाहर से नज़र नहीं आता था, अंदर था। आज सब अंदर है, लेकिन मंदिर बाहर से नज़र आ रही है। पूछिए आप, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो निकाल दिए, उस्मानिया हॉस्पिटल गिराने की बात कर रहे हैं। अरे तुम बना नहीं सकते, क्या गिरा दे तुम? उस्मानिया हॉस्पिटल की हकीकत तुम समझे नहीं, तो आपका भी स्टेटमेंट उसके फेवर में जा रहा है। कितना खाएंगे बाबा? कितने रोटी हजम रहे? आज आपको आप चाय डालो, 10 साल पहले कितने रोटी खाते, आज कितने रोटी खा रहे हैं? रहम करो अपने आप पे, अपने बच्चों पे रहम करो। मोहलत मिल रही है तो उस पर इस्तेफादा करो, वरना टाइम ख़त्म जाने के बाद में खेल ख़त्म, फिर ना आपको आपकी दौलत काम आएगी। दौलत तो ये है कि बीवी बच्चे घर तक, दोस्त खबर तक, आमाल हशर तक। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी इंग्लैंड में आदिवासी के अंडर में रहे तो आदमी है, हमको सब मालूम है। वो आलिम दीन के अंडर में रहे, आपने बहुत कुछ जानते हैं आप भी, लेकिन आप खाली बस एक ग्रीन ऐनक पहन के फिर ऐसा नहीं होता। ग्रीन ऐनक पहनने से जन्नत नहीं मिलती। जन्नत आसान नहीं है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करके बोल रहे हैं कि ये मुत्तक़ियों के लिए हमने बनाई है, ये मुत्तक़ियों के लिए है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नुम का जिक्र करके बोल रहे हैं ये जहन्नुम में काफिरों के लिए है। काफिरों तो खाली हिंदू नहीं है, इनकार करने वाला, नफ्स के मुताबिक चलने वाला, अल्लाह और उसके अहकामात को इग्नोर करके गुजर जाने वाला, उसका भी अंजाम दिया। ये हमारा काम पहुँचाना है। उलमाओं का भी काम है कि अपने लीडर की रहनुमाई करें, अच्छे बुरे को उसको समझाएं, उसको मुतनब्बे करें। उनके हक़ में भी ये बेहतर है, वरना ये बिरयानी, डबल गोश्त बिरयानी तुमको भी लेकर के डूबने वाली है। तुम भी जन्नत के रास्ते से हट गए। ये जितने में गिनाए हैं औकाफ की ज़मीन, सूद, छूट, शराब, कबाब, मर्डर करा देना, किसी का कत्ल करा देना आसान, ये पता नहीं तुम कब क्या हो जाओ। रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसके इख्तियार में हर चीज़। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے اقتدار دے، جس کو چاہے اقتدار سے بے دخل کر دے، ان کے اختیار میں۔ سوال تو تم سے ہونے والا ہے، سوال مجھ سے ہونے والا ہے، سوال یہی فیروز خان سے ہونے والا ہے، سوال یہی علماء کرام سے ہونے والا ہے، لیکن ٹائم ختم ہونے کے بعد میں ہماری نجات تو ناممکن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک سیٹ جیت گئے آپ جنت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کرپشن کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ پیسہ قوم ووٹ ڈال کے آپ کو دے رہی ہے، آپ یہ خریدنے کے لیے پولنگ عملے کو پیسے دے رہے ہیں، یا سیکورٹی کو دے رہے ہیں، یا پولیس کو دے رہے ہیں، روڈیوں کو دے رہے ہیں، جس کا کوئی حق نہیں ہے قوم کے پیسے میں جس کا کوئی حق نہیں ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں۔ پھر ووٹ ان سے مانگ رہے ہیں، ڈرا دھمکا یار ووٹ ان کا ہے تو وہ پیسے کا ان کا ہے۔ اگر آپ پیسہ سچے انداز میں استعمال کریں تو آپ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔